Yes, ma'am. Yes, tell me everyone. Visible, Okay, ma'am. okay. Letter E, extravagant. Ma'am, vocabulary. EXTRA, repeated word, and skin flint, and measurely. Next, extrovert. Extrovert. EXTROVART. Extrovert, bahirmukhi. Synonyms of the word sociable, gregarious, befriender, important word. BEFRIENDER, befriender, outgoing. Now, antonyms of the word introvert, solitary, wallflower, important word. WALL, wallflower, FLOWER, wallflower, loner, and shrinking violet, also important word. Next word, exalt, exalt, खुशी मनाना. Synonyms of the word rejoice, celebrate, jubilant, cheer, gladden. Now, antonyms of the word lament, bemoan, important word BEMOAN, bemoan, grieve, rule, and sadden. Now, next word fabricate, 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 जालसाजी करना. Synonyms of the word concord, coop up, important word COOP, coop up, forge, manipulate, and fake. Forge, this word you can find the play, strife, no, strife नहीं. Silver box, silver box, no, silver box में भी आपको ये word नहीं मिला था, कहाँ मिला था? Justice, yes, you can find this word justice. Forge, right? Yes, आप सब Yes, हैं ma'am. Yes, या ma'am. जा चुके हैं? यस, क्योंकि कल नहीं, हम नहीं, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते कनेक्शन टूट गया और हम हट गए और तब हम पढ़ा भी रहे थे और पता नहीं चल रहा था. इसलिए प्लीज कुछ ना कुछ बोलते रहा करिए. हमको पता है, आप लोग को पता है, फिर भी आप लोग नहीं बोलते हैं. लेकिन बोल दिया करिए, नहीं, चेक करते रहते नहीं है। हैं. जी, ओके. फोर्ज वर्ड आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, या FORGE, फॉर्जरी होती है ना, 9 को 90 Yes, कर दिया ma'am. जाता है जस्टिस में. Yes, यस, yes, जस्टिस ma'am. में Yes, होता ma'am. है मैम, फाइडर करता है. जस्टिस में. जी, तभी तो मैं बोल रही थी जस्टिस है, सिल्वर बॉक्स है, स्ट्राइफ है, कहाँ है? जस्टिस में था No, ना. ma'am. जस्टिस मैं में फाइडर करता है. हमने आंसर किया जस्टिस था में आपको क्वाइट. शायद आवाज नहीं आई. ओके 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 ओके. नाउ एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड बी अबव बोर्ड, important word. Now next word fabulous, 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 शानदार. Synonyms of the word amazing, remarkable, marvelous, astounding, important word. ASTOUNDING, astounding, awesome, fantastic. Now, antonyms of the word common, mediocre, normal, plain. Mediocre, MADICOR, important word. Now, facile, synonyms of the word effortless, superficial, shallow, cursory, important word. CURSORY, cursory. Now, antonyms of the word thoughtful, pensive, musing, and contemplative. Contemplative word you can find the Wordsworth work na, contemplative. Now, facilitate, 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 सुविधाजनक बनाना. Now, synonyms of the word expedite, further, help, promote, ease. Now, antonyms of the word obstruct, impede, inhabit, and hamper. Hamper is also important word. HAMPER. Hamper. Now next, facsimile. 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 Pratikriti. Synonyms of the word miniature, copy, replica. Also important word REPLICA. Replica. Duplicate, alter ego. Alter ego,
clone, ditto. Now, antonyms of the word: distinction, dissimilar, original. Yes. Now, next word: factual, या फिर CTUAL, factual, तथ्यपूर्ण, वास्तविक, real. Synonyms of the word: accurate, truthful, authentic. Now, antonym of the word: fictional, factitious, speculative, unhistorical, hypothetical. Now, next word: faint. Faint means बेहोश होना या फिर INT faint, बेहोश होना, हल्का. Now, and synonyms of the word: indefinite, unclear, vague, obscure. Antonyms of the word: clear, definite, and pellucid. Important word: PELLUCID, pellucid and distinct. Next word: fallacy या फिर LLACY, fallacy, भ्रम. Now, synonyms of the word: delusion, misbelief, deception, illusion, and mendacity. Important word: MENDACITY, mendacity. Now, antonym of the word: honesty, certainty. Next, fall off. Fall off या फिर LLOFF, fall off, गिरना, कम होना. Synonyms of the word: decline, decrement, dent, slump, diminution, and decrease. Now, antonyms of the word: boost, enlargement, rise, increase, increment. And falter या फिर TER, falter, लड़खड़ाना. Synonyms of the word: fluctuate, demure. Important word: DEMUR, demure. You can find this word: silver box, demure, and dither, waver, flounder, and vacillate. Now, antonyms of the word: persist, endure. Endure you can find in a Wordsworth work. Daffodils, no, maybe Tinternabbe, endure. Progress, outpace. Outpace, important word. OUTPACE, outpace. Next, familial. FAMILIAL, familial. पारिवारिक या परिचित. Now, synonyms of the word: domestic, household, friendly, close, intimate. Synonyms, antonyms of the word: alien and foreign. हेलो मैम. Next, yes sir. सर ये किस बुक का है मैम? Sir, it's not any particular book, mix up of many books came in examination at previous year, and in a future examination you can find these words. Not any particular book. ओके मैम. Okay, sir. Now, last word: famous, प्रसिद्ध. Synonyms of the word: famed, well-known, prominent, renowned, eminent, and known. Now, antonyms of the word: anonymous, obscure, unknown, unnoticeable, unsung, unsung important word, UNSUNG, and inconspicuous. Okay. Now, if you any kinds of problem, then we can discuss here. Yes. Have you? Do you have any? Thank you very much. Most welcome. नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो कि हमारा चल रहा है हिस्ट्री का. हम सोच रहे हैं कि हिस्ट्री जो है फिनिश ही कर दें इसको, जो है तब फिर से हम लिटरेचर पर बैक हों, कि अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है. विक्टोरियन एज इम्पोर्टेंट बचा है. तो ये ऐसा होता है हिस्ट्री में, थोड़ा जब क्रॉनिकल चीजें हम करते चलते हैं एज टू एज, तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, यस सर, याद रहती हैं. हाँ, वरना तो हमने प्लान बनाया था कि 3 दिन जो है राइटर हम कवर करेंगे, 3 दिन जो है हम हिस्ट्री कवर करेंगे, लेकिन फिर वो मामला कवर करा दिया. हाँ, उसके फिर मकर संक्रांति हो जाएगा, है ना, मकर संक्रांति न बन जाए वो. तो इसलिए जो है हिस्ट्री जो है पूरी कवर कर लेंगे हम लोग,
फिर जो है आगे से हम लोग लिटरेचर में राइटर कवर करेंगे। चलिए राइटर स्टार्ट कर रहे हैं। ना थोड़ा बहुत कभी पढ़ा नहीं है हिस्ट्री को, तो लग रहा है क्रोनोलॉजिकल पढ़ता लग रहा है, तो जो चीजें याद। जी जी जी, सही बात है आपकी। हमारी स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों को? यस सर। जी जी सर, विजिबल है। कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे? ये नोट्स जो है जितना भी शायद हमने रेनेसा तक के अपलोड कर दिया है उस पे, लेकिन वहां पर एक न्यू फीचर ऐड हो गया है। हो सकता है इसको लोग डाउनलोड ना कर पा रहे हो, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब जा करके आपको डाउनलोड का बटन एक्टिव होगा। तो उसको सबसे पहले जो है आप सबसे पहले ईमेल आईडी नहीं नहीं, वो ईमेल आईडी नहीं, आप जो हमने लिंक ग्रुप पे भेजा है सीधे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको बटन एक देगा सब्सक्राइब का। तो सब्सक्राइब पे जब क्लिक करेंगे तो वो सीधे चैनल पे पहुंचा देगा। उसको सब्सक्राइब करेंगे तब नीचे फिर बैक आएंगे तब आपको ये डॉक्यूमेंट खुलेगा। हाँ, ओके सर। वैसे खुलेगा नहीं कहीं। अभी तक खुला नहीं है बस इतना जो है आप लोगों से ये उम्मीद ऐसी है कि थोड़ा आप हमारे लिए करिए, थोड़ा हम आपके लिए करें, ताकि जो है लक्ष्यों को हमें भी जो है आपसे प्रोत्साहन चाहिए। और प्रोत्साहन मिलेगा कैसे? जब आप लगातार जुड़ेंगे हमसे, और लगातार जुड़ने के लिए हम ये देखते रहते हैं कि हमारे से कितने साथी जुड़ रहे हैं बराबर। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐड करी गई हैं, उसको जो है आप अगर आवश्यक समझते हैं कि आप हमसे जुड़ करके कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो आप भी चीज़ों को थोड़ा उंगलियों को तकलीफ दीजिए। कोई नुकसान वहाँ होने वाला नहीं है और पैसा भी कोई पड़ना नहीं। ठीक है? कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग इसमें हिस्ट्री में? बाकी एक चीज और हम बता दें आपको, चाहे जिस कोचिंग से आप पढ़े हों, चाहे जितना बढ़िया बेस्ट नोट्स आप पढ़ चुके हों, लेकिन अगर लगातार कुछ दिन तक हमारे साथ बने रहेंगे तो उस नोट्स से अलग बहुत सारी चीजें आप हमसे लेके जाएंगे। ऐसा कतई नहीं कह सकते कि जो नोट्स आप पढ़ चुके हैं वो खराब है या हमारा अच्छा है, या जिनसे आपने पढ़ा है वो कम पढ़ाए होंगे आपको, हम ज्यादा पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है आप यहाँ पे बने रहेंगे लगातार, तो जितनी चीजें आप पढ़ चुके हैं, जिस भी गुरुजन से आप पढ़ चुके हैं, उस नॉलेज में यहाँ के द्वारा प्राप्त की चीजें आपको प्लस करेंगी, आपको थोड़ा वहां पर नॉलेज को आपके ग्रो करेंगी। और यही थोड़ी थोड़ी चीजें जो है आपको एक सामान्य एस्पिरेंट से विशेष एस्पिरेंट्स बनाएंगी, क्योंकि आने वाले समय में सामान्य एस्पिरेंट्स के लिए कोई जगह है नहीं। सामान्य एस्पिरेंट्स वो हैं जो मार्केट की बुक्स पढ़ रहे हैं, जो आप खुद अपना अंदाजा लगा लो दिमाग से, जो मार्केट की बुक आप पढ़ रहे हो, क्या आप ही अकेले पढ़ रहे हो? क्या कोई और नहीं खरीदा है? वो आपका जवाब आएगा भाई बहुत सारे लोग खरीद चुके हैं, चाहे मिलियन माइंड्स हो, चाहे डॉक्टर मंजीत सिंह हो, चाहे सुधीर की अरोड़ा हो, या प्रकाश की हो, वो सारी बुक्स जो है लोगों ने गड्ढा लगा रखा है। अब दिमाग में आ गया कि वो पढ़ते नहीं होंगे। भैया पढ़ते भी हैं, आपके पैरेलल होंगे, कुछ आपसे ज्यादा पढ़ रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन, कोचिंग आपने करी है क्या? किसी ने कोचिंग करी नहीं है। आपका जवाब आएगा इलाहाबाद में जाके देख लो, कोचिंगों में जगह ही नहीं है। तो फिर क्या है आपके पास चीजें जो है जो एक्स्ट्रा आपको बना रही हैं। जब मैं इलाहाबाद एक कोचिंग को गया तो वहाँ पे सर थे, तो उन्होंने एक चीज जब कई दिन तक के लगा तो मुझे लगा कि फ्रस्ट्रेट में होने लगा हूँ। मैं उनसे पर्सनल काउंसलिंग के लिए गया, बोला कि सर ऐसा ऐसा चीजें हैं, हमें कुछ गाइड करिए, कैसे जो है चीजों को हम मैनेज करें ताकि हमको सिलेक्शन मिल जरूर जाए। तो उन्होंने बोला कि पहले ये चीज बताइए सुरेश, आपको जो है गवर्नमेंट सिलेक्शन क्यों दे, आपको क्यों वैकेंसी एक दे, आपको कोई क्वालिटी बताइए आपकी अपनी, जो यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट हैं इस कोचिंग में बैठे हैं या फिर जितने इलाहाबाद में एस्पिरेंट हैं, सब तो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर आप ही क्यों? सपोज दैट कि सिलेक्टर आ गया आपके सामने, कह रहा है कि हम आपको नौकरी दे देंगे, लेकिन कोई वजह बता दीजिए आपको नौकरी क्यों दें, और इन सबको छोड़ करके एक वैकेंसी आप ही को क्यों दें, इनको क्यों ना दें? क्या आपके पास जवाब है? मैं निरुत्तर था। क्यों निरुत्तर था?
क्या मैं बता दूं? मैं बहुत दूर से आया हूं पढ़ने, इसलिए हमको दे दीजिए। मैं अंग्रेजी इतने घंटे पढ़ता हूं, इसलिए हमको दे दीजिए। या हमने इतना लेवल जो है अचीव किया है, ये दे दीजिए। अरे जब हम अपने लेवल की बात करते हैं कि 120 में जो है हम साहब जो है 100 का लेके आ रहे हैं, इसलिए हमको नौकरी दे दीजिए। तो भाई साहब 101 लेकर के आ रहा है एक बंदा, एक 105 लेकर के आ रहा है, एक 110 लेके आ रहा है, फिर कहाँ? हमसे तो बेहतर वही है। तो कई बार ऐसा चीज हम सोच करके ये देख लेते हैं कि हम अपना एवोल्यूशन खुद कर लें। और जब आपका अपना खुद कॉन्शियस दिमाग अलाउ कर जाए कि यस अब जो है मुझे नौकरी दी जानी चाहिए, जितनी 200 जो भी 1000 के करीब में सीट्स हैं, और उनमें से लगभग 200-250 के करीब में इंग्लिश की सीट हैं, उनमें से अपने आप को समायोजित करने के लिए लगभग जो फाइट है यूपी में, जितना कि हम अनुभव कर पा रहे हैं, लगभग 2 से 2.5 लाख के करीब में फार्म सिर्फ इंग्लिश का पड़ा होगा, जिसमें से लगभग ट्रू एस्पिरेंट जो होगा वो 50,000 के करीब में है, जो लगातार कोचिंग किताबें पढ़ रहा है। और इसमें जो आपको टक्कर देगा, मतलब जिसके अंदर एलिजिबिलिटी इक्वल है, वो करीब करीब में आपका 5,000 के करीब में एस्पिरेंट है पूरे यूपी में, तो लगभग इक्वल रैंक का है। बहुत ही टफ कंपटीशन आगे आने वाले समय में होने वाला है। तो जो नॉलेज आपके पास है पहले से, जो किताबों से ले रखी है, सेल्फ स्टडी से ले रखी है, जो नॉलेज आपने किसी कोचिंग से, किसी गुरुजन के माध्यम से ले रखी है, उसको तो आपको सजो के रखना ही रखना है। और उसके अतिरिक्त आप कितना कर पा रहे हैं, सिलेक्शन आपका इस चीज पे निर्भर करता है। क्योंकि हमने जितने भी साथियों को देखा है, कोई बंदा ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि साहब फला कोचिंग से हम गए थे और उन्होंने इतना नोट्स दमदार दे दिया, हमने पढ़ा और पास। कोई ऐसा बंदा है नहीं मिलने वाला जो सिर्फ कहे फला गुरुजन से हमने पढ़ा था और वही जो हमको ये कुछ जड़ी बूटी दे दिए थे, 2-3 बूंद नेक्टर दे दिए, हमारे जो है मुंह में डाल दिया और अमृत जो है हमें सफलता का मिल गया। कोई ऐसा कहने वाला? हाँ, ये एक चीज जरूर कहने वाले हैं, मैं जिस कोचिंग को गया, मैंने उस कोचिंग से मार्गदर्शन लिया और उस कोचिंग के द्वारा बताए गए सभी कामों को हमने किया, प्लस एक्स्ट्रा हमने ये चीजें करी, तब सिलेक्शन हुआ। क्यों कह रहा है बंदा वो? क्योंकि ये उसने करा है और ये रियलिटी भी है। क्योंकि एक कोचिंग में पढ़ने वाले लोग जो है सभी क्यों सेलेक्ट नहीं होते? फिर सेलेक्ट हो जाने चाहिए थे सभी। अगर वही नोट सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है, वही टीचर्स का सबसे मार्गदर्शन सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है, हमको सफलता दे सकता, तो फिर सबका हो जाना चाहिए था। सबका नहीं हो सकता। जो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं उन्हीं का हो पाता है। ये प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है एक्स्ट्रा एफर्ट करने वालों के लिए बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपके साथ में भी काम किया जाए और कुछ एक्स्ट्रा लेवल पर तक के हम लोग अपने आप को पहुंचाएं, बने रह सकते हैं हमारे साथ लगातार, और हमारा मनोबल भी आप लोग बढ़ाते रह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग जो है जैकोबियन एज पढ़ चुके थे, है ना? क्यों, वो याद दिलाएगा? है आप लोग की नहीं है भाई? सर कल हम क्लास में नहीं थे तो कल का नहीं पता चल। अरे जो क्लास में हो बता दो भाई। सब नए लोग हैं आज? अरे वाह, गजब। कैरोलिन शायद चल रहा था ना? कैरोलिन में हुआ कहाँ तक था ये देखना। यस सर, कैरोलिन ये चल रहा है। इसके हम फीचर देख रहे थे। कैवेलियर पॉइंट ये हो गया था। कैवेलियर हो गया था। लिटरेरी डिवाइसेस ये देखना था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कैरोलिन पीरियड जो है चार्ल्स सेकंड। सर थोड़ी ब्लर है स्क्रीन। हाँ, सभी लोगों को सर ब्लर दिख ब्लर रही है? जी सर, जी सर। एक मिनट, फिर मैं दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूँ। दिख रहा है जी? नहीं, अभी उठते हैं। सर सर दिखने पहले लगी तब भी थोड़ा सही screen। था, अब थोड़ी डल है सर अभी। अब सही है सर, अब क्लियर है। अब डल हो गया। क्लियर? नहीं सर, डल है सर।
डल है अभी। सर फिर से ब्लर हो गई। कैसा लग रहा है? सर आप पढ़ाइए, फिर देखते हैं, पढ़ाते पढ़ाते हो जाए क्लियर। चलिए देखिए, थोड़ा Yes, देखिए, एडजस्ट करिए। exactly. Gradually, it should be clear, ना? देखते हैं। कैरोलिन पीरियड हम लोग पढ़ रहे थे। ये जो है 1625 से लेकर के 1649 के बीच का जो समय होता है कैरोलिन पीरियड माना जाता है। कैरोलिन पीरियड जो है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस राजा के नाम से है, तो चार्ल्स फर्स्ट के नाम से आता है ये। और चार्ल्स फर्स्ट जो है, ये अगर ये पूछ ले कि किस भाषा से आया हुआ है, तो कैरोलिन जो है ये लैटिन भाषा से आया है। चार्ल्स का मतलब कैरोलिन लैटिन में का ही ट्रांसलेशन इंग्लिश चार्ल्स है, इसलिए इसको जो है कैरोलिन पीरियड माना जाता है। ऐसे ही इसके पहले जैकोबियन जो था वो जेम्स के नाम पर था, क्योंकि जैकोब जो आता है लैटिन वर्ड का है, जैकोब का मतलब जेम्स होता है, तो वो जैकोबियन वहां पर पड़ गया। यहाँ पर कैरोलाइन चार्ल्स होता है, तो यहाँ पे कैरोलाइन एज पड़ गया। 1625 से 1649 तक के बीच का जो काल है, ये कैरोलिन पीरियड जो है माना जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कल हम लोग देख चुके थे, और इसमें जो है नोटेबल राइटर्स और उनके वर्क्स जो है भी हम कल देख रहे थे, ये भी देख चुके थे। जॉन मिल्टन इसके जो है बहुत ही प्रमुख राइटर माने जाते हैं, और रॉबर्ट बर्टन्स, सर थॉमस ब्राउन्स और कवेलियर पॉइट्स एक ग्रुप था उस समय का जो रॉयलिस्ट फेवरेट चीजें लिखता था, वो कवेलियर थे। और कॉमन फीचर्स हमने देख लिया था कवेलियर पोएट्री के। अब जो है आगे हम, हाँ इसमें से एक चीज ये इम्पोर्टेंट है, कैवेलियर पॉइंट का जो स्कूल होता है, इसके जो पूरे ग्रुप से कौन कौन लोग इसमें बिलोंग करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। रॉबर्ट हेरिक, थॉमस क्रू, जॉन सकलिंग, रिचर्ड लोलैक, द ट्रिबल बेंच, ये सारे लोग इतने होते हैं। इनमें से पूछ लेता है कि कौन से इसमें से है बिलोंग करते, कौन से इसमें से नहीं है। तो यहाँ तक हो गया था। आगे पॉइंट हम लोगों को पढ़ना था कि कैरोलिन एज में जो है कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस उस समय यूज की जाती थी। तो पर्सोनिफिकेशन इन्वॉल्व द ह्यूज ह्यूमन क्वालिटीज। जनरली हम जानते हैं पर्सोनिफिकेशन जो है उस समय ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, इसमें कैरोलिन एज में। एलेगरी अच्छा खासा इस्तेमाल की जा रही थी। एलेगरी टर्म हम लोग पहले भी इसको डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। जब सरफेस लेवल का मीनिंग अलग निकले और हिडन मीनिंग अलग हो जिस भी राइटिंग में, वो एलेगरी कहलाती है। जैसे जॉन बनियांस का जो है पिलग्रिम प्रोग्रेस, ये जो है खूब पूछा जाता है। जैसे लेसिडस का, उसमें देख सकते हैं एक एग्जांपल जो दिया है पर्सोनिफिकेशन का। जॉन मिल्टन्स पोएम लेसिडस पर्सोनिफाइड द नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ द सेजेस, कन्वे द ग्रीफ मॉर्निंग ऑफ द लॉस्ट फ्रेंड्स। ये भी एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल उनका जो है लेसिडस है। कई चीजें उन्होंने पर्सोनिफाइड किया है। विट क्या होता है? विट क्या होता है कि लैंग्वेज में बुद्धिमत्ता पूर्ण लैंग्वेज का इस्तेमाल करना विट कहलाता है। तो ये भी जो है कैरोलिन एज में इस्तेमाल की जा रही थी, क्योंकि प्रोज राइटर जो थे वो काफी बिटी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे। हाइपरबली, इसका भी इस्तेमाल कैरोलिन एज में होता था। जैसे कि थॉमस क्रू का जो पोइम है टू एजी, इन्होंने जो है इसमें काफी अच्छा खासा हाइपरबली का इस्तेमाल किया है। एग्जेजरेटेड चीजें जो होती है, जो बड़ा चढ़ा के चीजें बताई जाती है, हाइपरबली कहलाती हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, द ग्रेट ब्रिटेन वेंट अंडर द लीडर ऑफ क्रॉमवेल। 1649 में जो है उन्हें बिहेडेड कर दिया जाता है। किसको? चार्ल्स फर्स्ट को। अच्छा, बिहेडेड कहाँ किया जाता है? हम लोगों ने कल पढ़ा था, किसी को याद है? बता सकता कोई? जी, कहाँ बिहेडेड किया जाता है? कहाँ गया भाई? हाउस का नाम क्या था और डेट क्या थी? डेट एंड हाउस दोनों चीजें हमने बताई थी। ये सर देखो, 30 जनवरी, जनवरी, 30 जनवरी। हाँ हाँ हाँ, 30 जनवरी 1649 को। और हाउस का ना बैंकेट हाउस, बैंकेट हाउस में जनवरी 13, 1649 को ये बिहेडेड कर दिए गए थे। ये डेट आप तो याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है? आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, द ग्रेट ब्रिटेन वेंट टू लीडरशिप ऑफ द ओलिवर क्रॉमवेल, बिगिनिंग ऑफ द प्यूरिटन इंटरगनम। प्यूरिटन इंटरगनम कॉमनवेल्थ पीरियड और न्यू
ये सारी जो 2-3 चीजें हैं, ये एक ही नाम है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ के जो राइटर हैं ये भी जो है पूछा जाता है कि ये पूरी जो है जो पीरियड होता है इसमें प्रोज राइटिंग कौन सी थी, पोएट्री कौन सी थी, कौन से डोमिनेंट राइटर थे उस समय के, क्या लिटरेरी फीचर्स उस समय, क्या कोई इनोवेशन लिटरेरी हुआ था, ये सारी चीजें जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमनवेल्थ पीरियड की। तो चलिए आगे हम प्यूरिटन इंटरगनम पढ़ते हैं। प्यूरिटन इंटरगनम इज आल्सो नोन एज द इंग्लिश इंटरगनम। अगर जो है प्यूरिटन इंटरगनम नहीं दिया हो और अगर इंग्लिश इंटरगनम दिया हो तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये अलग से कोई चीज बताई जा रही है, वही चीज है जो प्यूरिटन की बात बताई जाती है। जस्ट वेट एक मिनट जी। द कॉमनवेल्थ पीरियड बिगन इन द 1649 AD। क्या हो रहा भाई जी। बाय द बिहेडिंग किंग चार्ल्स फर्स्ट, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, अंडर द लीडरशिप ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल इंडेड इन 1660, जो कि 1660 में खत्म हो जाती है। विद द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड जब आ जाते हैं तो ये एज कहीं वहीं तक के खत्म मानी जाती है। आगे देख लेते हैं, हु वर द प्यूरिटन्स। प्यूरिटन्स कौन थे? प्यूरिटन्स वर इंग्लिश प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी। एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्यूरिटन्स जो है किस पीरियड में सबसे ज्यादा जो है प्रभावी थे? 16th एंड 17th सेंचुरी, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है डिफरेंट एग्जाम्स में, हमने देखे हैं। हु वर द प्यूरिटन्स, प्यूरिटन्स कौन थे जो 16th और 17th सेंचुरी में प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते थे, वो सारे के सारे जो प्यूरिटन्स कहलाते थे। हु वांटेड टू, अच्छा ये कौन क्या है? प्रोटेस्टेंट क्या है? क्रिश्चियनिटी के ही दो संप्रदाय थे, एक तो प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट डेमोक्रेटिक था, कैथोलिक जो है एक अधिनायकवादी तंत्र में बदलता चला जा रहा था। तो ये सब डेमोक्रेट्स थे। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि हु आर द डेमोक्रेट्स, प्रोटेस्टेंट की कैथोलिक, तो प्रोटेस्टेंट जो है डेमोक्रेट्स थे। हु वांटेड टू क्लींस द चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो कि चर्च में जो ओपेसी वहां की थी उसको जो है वो क्लीन करना चाह रहे थे, चर्च को ही सर्वोपरि माना जाने लगा था। रोमन कैथोलिक प्रैक्टिस प्यूरिटन्स वांटेड टू चर्च ऑफ द प्रोटेस्टेंट ओरिएंटेड, वो मानते थे कि भगवान की पूजा होनी चाहिए लेकिन इतना बड़ा तामझाम नहीं होना चाहिए जितना भी कैथोलिक लोग करते हैं, तो इसलिए जो है ये प्रजातांत्रिक होना चाहिए। जैसे अपने यहाँ भी कई चीज जगहों पर जो है पूजा अर्चना के लिए सबको परमिशन नहीं है, कुछ ही कैटेगरी के लोग ही पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसे वहां पर तो बहुत ज्यादा था, तो नॉर्मल व्यक्ति जो है नहीं जा पा रहा था। जो पैसे वाले लोग थे तो वो चर्च में जा करके फादर को पैसे दे करके पार्डोन ले लेते थे, क्षमा पत्र ले लेते थे, पार्डोनेज होता था वहां पर, पैसे दो और जो तुम्हारे पाप हैं वो धुल जाएंगे। उन्होंने पत्र दे दिया कि तुम पाप से मुक्त हो, तो फिर पाप से मुक्त हो गए। तो इस चीज को जो वो खत्म करना चाह रहे थे सारे प्यूरिटन। ऐसा नहीं है कि कोई जो है पादरी या फादर कह दे कि तुम पाप से मुक्त हो तो पाप से मुक्त हो जाएगा। द वर्ड इंटरगनम इज अ फॉर्म लैटिन, ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरगनम कहाँ से आया है, ये भी लैटिन। देखिए जैकोबियन, ये भी लैटिन से। चार्ल्स के नाम पर जो कैरोलिन पड़ा, ये भी जो है लैटिन से। जैकेब जेम्स बना और कैरोलिन से चार्ल्स बना, तो ये भी चीजें ध्यान रखिएगा, सारे के सारे ये लैटिन से है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन या आंतरिक, एंड रेगनम का मतलब होता है रेन। ये दोनों का मतलब भी अगर आपसे पूछ ले समझ जाइएगा। इंटरगनम का मतलब आंतरिक, रेन आंतरिक शासन सत्ता या शासकीय व्यवस्था। प्यूरिटन इंटरगनम मीन्स द पीरियड ऑफ द रूलिंग ऑफ द इंग्लैंड इन बिटवीन किंग चार्ल्स फर्स्ट एंड किंग चार्ल्स सेकंड के बीच का समय जो है प्यूरिटन इंटरगनम कहा जाता है। बाय प्यूरिटन्स हु वर प्रोटेस्टेंट, प्यूरिटन्स के जो कि क्या थे? प्रोटेस्टेंट थे। इट इज आल्सो नोन एज द कॉमनवेल्थ पीरियड, इसे कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल द पार्लियामेंट डिसाइडेड टू द ग्रोवेड इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड एज अ रिपब्लिक आफ्टर द एक्सक्यूशन चार्ल्स फर्स्ट विदाउट अ रूलिंग मोनार्क फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। एक ऐसा पीरियड था पूरी दुनिया में जो पहली बार बिना जो है मोनार्क के जो है एक शासन सत्ता चली। एक प्रकार से माना जाता है ये इंटरगनम पीरियड से ही जो है एक लोकतंत्र की जो है वहां से जो जिसको चिंगारी कह सकते हैं कि वो वहीं से निकली
और पूरी दुनिया में लोकतंत्र पहुंचा। और जो प्रजातांत्रिक तरीके से जो है चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में शासन सत्ता जानी चाहिए, ये जो है ओलिवर क्रॉमवेल ने वहां पर जो है यही चीज स्थापित करी थी। विकास अंडर द लीडर, हाँ ये हो गया, विदाउट द रूलिंग ऑफ मोनार्क, ये हो गया। चलिए आगे है आपका हु इज द ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल कौन था? हालांकि ये वेल नोन, सब लोग जानते हो, थोड़ा बहुत जो है जान लीजिए। ओलिवर क्रॉमवेल इज आल्सो नोन एज द लॉर्ड प्रोटेक्टर। क्या नाम से जाना जाता था? नोन एज लॉर्ड प्रोटेक्टर। अगर पूछ ले हु इज द लॉर्ड प्रोटेक्टर, कई लोगों के नाम दे देगा, तो ध्यान रखिएगा ओलिवर क्रॉमवेल वाज नोन एज द लॉर्ड प्रोटेक्टर। ही वाज पॉलिटिशियन, मिलिट्री ऑफिसर था एंड स्टेटमेंट। देखिए जो मिलिट्री ऑफिसर, इसी बंदे ने जो है पूरी दुनिया को गुरिल्ला प्रवृत्ति की, जो युद्ध प्रवृत्ति थी, वो इसी ने निजात करके दी। ही वाज ए हार्ड रोड ऑफ प्यूरिटन्स ऑफ द बैंड ऑल काइंड्स ऑफ द एंटरटेनमेंट्स ड्यूरिंग हिज रूल। इसीलिए जो है सारे जो है वो प्यूरिटन्स जब आ गए थे तो बंद करा दिए थे, पिक्चर हॉल वगैरह वहां के, सॉरी थिएटर बंद करा दिए थे। Work of the possible during his period. After the execution of the Charles I, his eldest son, Charles II, was proclaimed as the king by the Parliament of Scotland. But Cromwell defeated Charles II in the Battle of the Worcester. ये ध्यान रखिए। On the 3rd September 1651. चार्ल्स II फर्स्ट की तो बेडेसर ही हो जाता है। चार्ल्स II फिर से दावा ठोकते हैं कि हम तो वहां के कॉमनवेल्थ जो पार्लियामेंट है वहां के राजा तो हम हैं, लेकिन उसको जो है ये जो क्रॉमवेल है हरा देता है। कब हरा देता है? 1651 में। और किस बैटल में? बैटल ऑफ वर्सेस्टर ऑन द 3rd September 1651। एंड ड्यू टू दिस किंग चार्ल्स II had to flee France। कहाँ भाग जाते हैं ये? फ्रांस को भाग जाते हैं। Where he spent 9 years, यहाँ पर 9 साल तक रुकते हैं इन एग्जाइल में। मिलिट्री विक्ट्रीज इन आयरलैंड एंड अगेंस्ट द स्कॉटलैंड फ्रॉम 1649 to 1651 formally established the Commonwealth and the Cromwell's dominance of the new Republicans regime. In December 1653, he was named Lord Protector of the Commonwealth, a position he retained until his death September 1658। 1658 में क्रॉमवेल डेथ हो जाती है क्रॉमवेल की। When he was succeeded by his son Richard, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड जो है आ जाता है, whose weakens led, जो बहुत बढ़िया लीडिंग नहीं कर पाता है ब्रिटेन की, बहुत ही कमजोर प्रवृत्ति की लीडिंग रहती है। दिस culminated in the 1660 और 1660 तक स्टार्ट रेस्टोरेशन आ जाता है। when Charles II returned throne, चार्ल्स II गद्दी पर जाते हैं। Cromwell's body was removed from its resting place in Westminster Abbey and displayed at Tyburn. His head was placed on a spike outside the Tower of London, where it remained for 30 years until reburied of Sydney Sussex College Cambridge। ये उसको जो है रिमूव किया जाता है जब रेस्टोरेशन हो जाता है, क्योंकि वो उनके जो है सारा अगेंस्ट था। हिस्टोरिक बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, द कॉमनवेल्थ पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। कॉमनवेल्थ को जो है हम 4 एजेस में बात करके इसको हम पढ़ सकते हैं। पहला क्या था? 1649 to 1653 was the Commonwealth of England. In 1649, the Rome Parliament declared England a Commonwealth, a free collection of pupils ruled by Parliament, not a king. इन्होंने जो है 1649 से 1653 के बीच में घोषित कर दिया था कि कोई किंग विंग नहीं है, और ये सिर्फ जो है पार्लियामेंट के अंदर में जो है रूलिंग चलेगी। सेकेंड पीरियड द प्रोटेक्टरेट का पीरियड माना जाता है। इंग्लिश पार्लियामेंट अपॉइंटेड ओलिवर क्रॉमवेल एज ए लॉर्ड प्रोटेक्टरेट। किसने अपॉइंट किया था? देखो, एक तो लॉर्ड प्रोटेक्टरेट, ये जो है प्रोटेक्टरेट, हाँ, ये किसको माना जाता था? ओलिवर क्रॉमवेल को माना जाता था। कब अपॉइंटमेंट किया जाता है? 53 में किया जाता है। किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है? तो वहां की पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। दे कम विद द फर्स्ट रिटन
कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने पहला जो है एक लिखित संविधान जो है तैयार किया। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इन्होंने गवर्नमेंट का हथियार बताया। पार्लियामेंट ऑफर्ड क्राउन ऑफ इंग्लैंड टू ओलिवर क्रॉमवेल twice, but Cromwell denied the throne. Unfortunately, Cromwell died in the year of 1658. क्रॉमवेल को जो है वहां का थ्रोन ऑफर किया गया था कि आप जो यहाँ के राजा बन जाइए, लेकिन क्रॉमवेल ने जो है मना कर दिया था। कितनी बार जो है उसको जो है ऑफर किया गया था? ट्राइस, 3 बार। अच्छा, ये जो स्थिति थी क्राउन ऑफ रोम was offered to whom? Twice, but those person denied. ये किसके लिए है? किसको जो 3 जूलियस बार? सीजर। जूलियस सीजर को। तो ऐसी ही कंडीशन जूलियस सीजर के पास थी, तो वो भी जो है क्राउन लेने से मना कर दिया था। वही से यहाँ पर रही क्राउन, इन्होंने लेने से मना कर दिया। इनका यह मानना था कि अगर राजा हम बन गए, क्राउन हमने ले लिया, थ्रोन पे हम ऐसे आसीन हो गए, तो फिर राजतंत्र ही चलता रहेगा। और राजतंत्र के विरोध में ये चाह रहे थे कि पार्लियामेंट रूल करे, चुने हुए जनप्रतिनिधि जाएं, जनता की बात वहां पर रखें और उस हिसाब से नियम कायदे कानून बनाए गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1658 में इनकी डेथ हो जाती है और मामला वहीं का फेल हो जाता है। द थर्ड पीरियड, सेकंड प्रोटोक्रेट, इंग्लिश पार्लियामेंट अपॉइंटेड रिचर्ड क्रॉमवेल सन ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। जो 58 के बाद जो है रिचर्ड क्रॉमवेल को संसद जो है उनका प्रोटेक्टरेट जो है नियुक्त करती है, लेकिन आगे कुछ हो नहीं पाता एज ए लॉर्ड प्रोटेक्टर, बट ही वाज एन इफिशिएंट रूल। आपसे ये पूछ ले कि जो लॉर्ड प्रोटेक्टरेट थे तो कौन, मतलब कितने लोग थे? तो ये दोनों लोग थे, मतलब पिता पुत्र दोनों लोग जो है नियुक्त किए गए थे पार्लियामेंट के द्वारा। फोर्थ पीरियड की अगर बात करी जाए, किंग चार्ल्स सेकंड कोरोनेशन सेरेमनी जब वो वापस हो जाते हैं, took place after 2361 at Justice George Day, with Justice George Day at Westminster Abbey. The reopening of the theatre, तभी जो है थिएटर की ओपनिंग कर दी गई। During the Puritans rule under the Oliver Cromwell's Commonwealth 1649 to 1660, theatre were closed down as the Puritans considered them immoral and decadent. However, with the restoration of the monarchy and the return of the Charles II to the throne in 1660, the theatres were reopened and the art experienced in revival during his reign. क्योंकि उस समय थिएटर काफी बंद थे। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, प्यूरिटन इंटरगनम के पीरियड में जो है जो सबसे ज्यादा लिखे गए वो क्लोजेट प्ले लिखे गए। क्लोजेट प्ले समझ रहे हैं? ये Yes, sir. क्लोजेट प्ले का, To be read, not performed. हाँ, जो परफॉर्म नहीं किए जाने के लिए पर्पज से थे, वो सिर्फ पढ़ने के लिए थे। लोग पढ़ पढ़ के मजा लें, लिटरेरी मजा लें, बाकी देखने के लिए तो वहां पर सुविधाएं बंद थी। तो ये तो रहा हमारा प्यूरिटन इंटरगनम। आगे हम पढ़ेंगे, अभी है इसका काफी ज्यादा और लंबा है, इसके जो पीरियड है वो भी है थोड़ा बहुत, और कुछ राइटर्स भी हम इसमें देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे मेजर कॉमनवेल्थ पीरियड के जो राइटर्स थे वो कौन कौन से, इसमें जॉन मिल्टन साहब है, इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट थे। कभी कभी ये पूछ लेता है क्वेश्चन की वो इज द कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉन मिल्टन, क्योंकि जॉन मिल्टन हमारे टीजीटी में प्रेस्क्राइब्ड है, तो इनसे कोई माइन्यूट से माइन्यूट क्वेश्चन जो है हमसे पूछा सकता है। तो लिटरेचर का जो हिस्ट्री का पोर्शन हमारा सेगमेंट है वो यहीं तक के। आफ्टर अ 2 मिनट शॉर्ट ब्रेक आई विल कम बैक विथ इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस पेपर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, जस्ट वेट फॉर 2 minutes. Thank you, sir. Thank you so much, sir.
एम आई ऑडिबल? जी सर, यस। ग्रामर की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। देखिए 25 क्वेश्चन की हमारी सीरीज है पूरी। ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच जनरली जो है जितने भी टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारा हम कर चुके हैं। थोड़ा हम स्ट्रक्चरल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं लगभग जो है हम यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग बात कर रहे हैं वॉइस एंड नरेशन पे। देखते हैं इसमें क्या है। देखिए अभी हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि कई साथियों का एक इशू आया अपना कि सर पेड वाला जो अमाउंट है कुछ ज्यादा है, आपका कम हो तो जो है हम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम ऐसा कुछ अभी करने वाले हैं। अगर कुछ मामला हमारा सही रहा तो हम पेड वाली सीरीज जो है, जो साथी इंटरेस्टेड होंगे तो कुछ एक एक्टिविटीज हैं उनके जरिए जो है हम आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल कराएंगे। थोड़ा कुछ दिन इंतजार करिए। पेड में हम सभी लोगों को जोड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि जो फिर लोग वहां पर जुड़े हुए हैं उनके साथ अनजस्ट होगा कि एक आदमी पैसे दे के जुड़ रहा है, एक को हम फ्री करके जुड़ रहे हैं। और पैसे ले क्यों रहे हैं? इसका मतलब यह नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। प्रथम उद्देश्य तो सिलेक्शन लेना है। पैसा जो है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इस समय जो सीरीज में क्वेश्चन कल से मिलेंगे, 3 तारीख से चालू है, 125 क्वेश्चन है जो टॉपिक वाइज आपके हैं। इसमें जॉन मिल्टन, जितने भी राइटर हैं, मेजर राइट टॉपिक जितने भी हैं, वो सारे के सारे 125 क्वेश्चन के मिल रहे हैं। और दूसरा एक ग्रामर जो प्रो वर्जन चलने वाला में थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो जो एडवांस ग्रामर है उसके जो है 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और फिर जो एडवांस लिटरेचर है, वो लिटरेचर जनरली हम जो है नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि किसी पोएटिक लाइन्स हैं किसी पोइम पर, या फेमस स्पीचेस हैं, या क्रिटिसिज्म है, किसी राइटर का क्रिटिसिज्म है और किसी वर्क का क्रिटिसिज्म है। तो जनरली पैराडाइज लास्ट हमने खूब उसका पढ़ा कि कौन सैटर्न कौन है, गार्ड कौन करता था, और कितने फार्म बनते थे उसके, और कितने दिन उसको आने में लगा। इस तरह के क्वेश्चन खूब करे हैं हम कि कितने में झगड़ा कर लेते हैं, कब वो फ्रूट खा लेते हैं किस बुक में। इस तरह के क्वेश्चन करे हैं। लेकिन पैराडाइज लास्ट पर किस क्रिटिक ने कौन सा कमेंट करा है, ऐसा नहीं पढ़े हम ज्यादातर लोग। कौन सी स्पीच किस बुक में आती है, ये बहुत कम पढ़े हैं। डेलिला जो है पढ़े हैं कैरेक्टर किसका, वो ये तो पढ़े हुए हैं, लेकिन उसके अंदर की स्पीचेस जो है किस एक्ट में आती हैं ये नहीं पता चल पाता है हमको। तो जो ये प्रो लिटरेचर है वहां आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के टोटल जो क्वेश्चन की संख्या यहाँ आपको मिल रही है वो मिल रही है 225 225 क्वेश्चन हम आपको जो दे रहे हैं। ये दोनों सीरीजेस अगर इसको एक बार पढ़ लिए, आपने एक बार करा, तो जाहिर सी बात आपके दिमाग में तो जाएंगे ही जाएंगे। पूरे टीजीटी सिलेबस के आप अगर 225 क्वेश्चन उनको एक बार पढ़ेंगे ही, भैया 1 से 1.5 घंटा तो इनको 2 घंटे तो करीब में देंगे ही देंगे। प्लस 7:15 से लेकर के 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हम उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे प्रत्येक 225 क्वेश्चन का। आप बताओ इतनी मेहनत के लिए, इतना काम के लिए आपसे पैसे जो लिए जा रहे हैं 199 पैसे लिए जा रहे हैं आपसे ग्रामर के 199, 125 वाले के लिए जा रहे हैं आपसे 299। अब ये बताइए 199 299 में लेबर पकड़ के लाइए मंडी से जाकर के, भाई साहब वो रुपए लेता 500, उससे कहिए 125 क्वेश्चन बना के हमको दीजिएगा एक दिन में। 125 के बाद छोड़ दो, 10 नहीं बना पाएगा। तो सोचो हम अपनी सफलता के लिए अगर इतना कॉस्ट नहीं खर्चा कर सकते हैं, इसलिए नहीं खर्चा कर सकते कि पैसा दूसरे की जेब में चला जाएगा। बाकी आप मार्केट से लेने जाएंगे 300-400 रुपए के नीचे कोई बुक है नहीं। और जो क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं दावा है कि मार्केट की किसी बुक में नहीं मिलेंगे जो प्रो वाले। हाँ जनरल क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि हम भी किसी बुक से ही बनाए हैं, लेकिन जो प्रो के क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने टेस्ट सीरीज करी है वो गारंटेड टेस्ट सीरीज है। हमने पूरा टेस्ट सीरीज इस हिसाब से करी है कि मार्केट की किसी भी बुक से आप टैली करिए क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं। लेकिन वो अंदर से क्वेश्चन हमने बनाए कि दिए कि आपको कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से वो क्लियर हो जाए। तो वो हम करेंगे कोशिश। जिनको 200-250 रुपए भी नहीं खर्च करना है तो उनके लिए भी कुछ सोचेंगे।
फिलहाल तो अभी 3 तारीख से जो कल चल रहा है उन्हीं लोगों का है जो पेड है। बाकी आप सब लोग इस 5 बजे वाला सेशन निरंतर चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इसको एंजॉय करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। गुड इवनिंग सर। बताइए इसमें। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। द ऑथर्स न्यू नॉवेल व्हिच इज अबाउट सोशल चेंज विल लॉन्च सून। बताइए। विल बी लॉन्च, विल बी लॉन्च, will be launched। विल बी Will be लॉन्च, launched। सही बात। हाँ पैसिव विल जाएगा बी ना। लॉन्च, ऐसे चला जाएगा। विल बी लॉन्च किसमें आ जाएगी? बी पार्ट में दिक्कत आ जाएगी। इसमें क्या होगा? आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। आई डन अ लॉट ऑफ, आई डन कैसे हो जाएगा? हाँ, डन तो लगता है जब कोई बी फार्म की वर्ब हो, बी फार्म की वर्ब तो है नहीं यहाँ पर। या तो जो है आगे हैव लगाएं इसके पहले, I had हो जाएगा सर। या तो हैव कर दें, और या अगर हैव Had नहीं होगा लगाना है past हमको में। तो इसको भी हटाएं, तो डिड कर दें। सर डिड सही टुडे के लिए ना। डिड या हैव की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर सकते हैं। आई डू होना चाहिए। टुडे तो प्रेजेंट में जाएगा या फिर पास्ट में जाएगा? I- I did a lot of today। हाँ मैंने किया ना। आई डू अ लॉट Past ऑफ वर्क। हाँ डू भी, आई डू नहीं, आई डू हाँ हो सकता है। मतलब मैं करता हूँ। नहीं सर, यहाँ पे अगर डू लगाएंगे तो डेली बेस पे काम हो जाएगा ना। मतलब आई डू अ लॉट ऑफ वर्क, मैं हाँ मतलब ये हैबिचुअल सारे काम दिखाने करता लगेगा, हूँ। डू इट्स अ लगाएंगे। हैबिचुअल थिंग्स ना, देन डू इज नॉट हाँ सुटेबल। डू अगर लगाएंगे तो हैबिचुअल हो जाएगा। बाकी डिड या हैव की मेन, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके पहले हैव लगा देंगे तो भी हो जाएगा। आई है तो हैव ही लगाएंगे। एग्जैक्टली सर, आई हैव। प्रेजेंट ही देना पड़ेगा हमको। किस पार्ट में हो जाएगी दिक्कत? सी पार्ट में। ऑन द वे ही वॉज बीटेड ऑन हिज टो बाय ए पॉइजन। किसने? बीटेड नहीं होता है ना, बीटेड की थर्ड फॉर्म बीटेन होगा सर, बीटेन। बिटन। बीटेन होता है, बीटेन होता है, बीटेन हो जाएगा। किसमें आ जाएगी प्रॉब्लम? बी पार्ट। सुप्रिया आस्क्ड किरण दैट वेयर हैड हर मदर गॉन। वेयर आएगा, वेयर वेयर आएगा, दैट नहीं आएगा। आफ्टर वेयर एक वेयर वेयर एक हैर, साथ में। वेयर, Where her mother had gone। हाँ वेयर हर मदर हैड गॉन। सर एसर्टिव That बन means जाएगा ना। हाँ और क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन वो है नहीं, इंट्रोगेटिव तो है नहीं। That remove होगा और where her mother had gone हो जाएगा सर। जी जी जी। जी सही कह रही सोनम जी सही। दैट को रिमूव कर दें एक और हर मदर को यहाँ उठा लाएं, यहाँ पर नहीं सर, where के बाद में, वेयर के बाद हर में यहाँ मदर। पे जी यहाँ पे अब सही हो गया पहला पार्ट। वेयर हर मदर, सही। The letter was posted। पोस्टेड होगा सर, पैसिव जाएगा। पोस्टेड, पोस्टेड हो पोस्टेड जाएगा, होगा बहुत सही, Posted बहुत yesterday। सही। पोस्टेड हो जाएगा, सही बात। सी पार्ट में दिक्कत। आगे बताइए। प्लेजर कैन नॉट डेराइव फ्रॉम गिविंग पेन टू इनोसेंट। प्रेजर कैन नॉट बी ड्राइवन, मतलब Can not be driven होगा ना सर। जी हाँ जी, थर्ड पैसिव जाएगा ना। Can not be driven from giving। कैन नॉट बी Driven। ड्राइवन, बी और यहाँ पर एन। अब सही हो जाएगा। ए पार्ट में
इसमें क्या, ही आस्क्ड फ्रॉम मी, he asked me from नहीं आस्क्ड आएगा। मी, फ्रॉम रिमूव हो जाएगा सर। नाम का कोई औचित्य यहाँ पर नहीं है। सुपर फ्रॉम, ए ऑप्शन। 3 more elevated roads have been proposed प्रपोज्ड, in the new plan. proposed थर्ड फॉर्म आएगी। हैव प्रपोज्ड बीन आएगा, सही प्रपोज्ड। बात। प्रपोज्ड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? डी पार्ट में। Try, someone listen to our conversation. लिसन तो अवर नहीं सुनता है, होगा नहीं सर, होगा, सुन रहा है। लिसन होगा ना, लिसन नहीं होगा। लिसन। एक कंटिन्यूअस में जाएगा। कोई मेरी बात सुन रहा है, सुनता है नहीं, सुन रहा है। क्या होगा? समवन समवन इज लिसन, हाँ इज हाँ यही होगा। लिसनिंग, Is इज listening Someone is- लिसनिंग, इज लिसनिंग, इज लिसनिंग। इज लिसनिंग। समझिएगा इसको, बढ़िया लिखते नहीं बनते। बी पार्ट। अगला, सीमा वाज प्रिंकल्ड एक्टिव जाएगा। सीमा इंक्लूड एक्टिव जाएगा, पैसिव नहीं जाएगा। सीमा वाज Was नहीं, स्प्रिंग, सीमा प्रिंकल्ड, स्प्रंकल्ड आएगा, वॉज नहीं आएगा। स्प्रंकल्ड सीमा है, ही तो सीमा ही तो छिड़क एक्टिव वॉइस में जाएगा। सीमा स्प्रंकल्ड, गार्निश, सही बात है। इसको हटा दे, मामला सही हो गया। रामम बेटा रामम। A soybean processing unit is going to set up soon in our village. इससे क्या होगा? सोयाबीन जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो लगाया जाएगा, खुद लगेगा नहीं। इज बीइंग गॉन, यूनिट इज गोइंग टू बी सेटअप, इज be set up. बीइंग। हाँ, वो जो मील है, ये यूनिट है, प्रोसेस है, वो सेटअप की जाएगी ना, वो खुद नहीं होगी, पैसिव जाएगा। खुद नहीं होगी, पैसिव में होगी। टू बी टू सेटअप बी सेटअप। कोई भी में आ मील जाएगा। है, कोई भी फैक्ट्री है, वो सेटअप कराई सही, जाएगी। इन्फिनेटिव वाला में जाएगा ना, इन्फिनेटिव वाली रूल लगेगा ना यहाँ पर। इंफिनिटी वाला। रॉयल बंगाल टाइगर and her 3 cubes was poisoned. सर वर्ब होना चाहिए। और Poisoned Royal होगा। दो दिक्कत है। पॉइजन होगा सर, पॉइजन। हाँ पॉइजन तो वहाँ पर वर भी करें और पॉइजन भी करें। पैसिव में जाएगा। यहाँ पर वर करें और इसको जो है ईडी फॉर्म में लेके थर्ड फॉर्म। जी बिल्कुल। तब सही होगा। डी पार्ट। यू आर नॉट एक्सपेक्ट है, इसको जो है पैसिव बनाना होगा। एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड, यस। सही बात। एक्सपेक्टेड करते हैं ईडी, इसमें ए पार्ट में। Many Indian languages can be read using the कैन बी रीड, ING हाँ नहीं है। कैन बी रेड होगा, रेड। थर्ड फॉर्म देना पड़ेगा, रीडिंग नहीं होगा। सही, किसमें आ जाएगा? सी पार्ट में आ जाएगा। A
total of 300 economically backward students would be awarded. would being नहीं be आएगा, would be awarded, ना awarded. कि being. would be awarded. awarded. would Would be be awarded. awarded. जी would be awarded होगा, would have been awarded होगा. नहीं सर, would be award. क्या आएगा सर? would be. be आएगा. would be awarded हाथ से निकल रहा है. चलो would be ही होगा सर. किस पार्ट में आ गई दिक्कत? बी पार्ट. It was also claimed that the players were confused with drastic change in the strategy of everyone. It was also claimed. Claimed. claimed होगा. क्यों? Yes sir. Claimed आएगा. क्लेम Was किया also जाता है. claimed that, क्योंकि Claimed. आगे वाला पार्ट भी जो है पैसिव ही जा रहा है. were confused. हम्म. Players were confused. The player was declared run out. declared. Declared. Declared होगा. सही. Yes sir. declared. 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 Deep. Anybody who does not stop at the red light will be Will fined. be fined. Will be fined. will be fined. Passive. Will be fined. किसमें आ जाएगा? ए पार्ट में. A part में. थोड़ा आप सभी लोगों से एक अपील है कि जब जो है पढ़ने के लिए आप लोग बैठे हैं तो एक ऐसा स्थान बना लें कहीं पर स्टूडेंट वाला कि एकांत हो और नॉइज रहित हो, शांति में बैठ करके पढ़ें ताकि आपका भी कल्याण हो. अन्यथा आपका डिस्टर्ब के साथ साथ में जो 4 लोग और जुड़ते हैं उनका भी डिस्टर्ब. आपके घर की जो है चाय की खुशबू दूसरे लोगों को भी नहीं पढ़ने देगी. तो ये ऐसा ही करें. विद्यार्थी बने तो फिर विद्यार्थी के सारे गुण लेकर, वरना ना मास्टर बनेंगे ना विद्यार्थी बनेंगे, गड़बड़ हो जाएगा. एक तो बनना ही पड़ेगा, तो मास्टर बन जाए विद्यार्थी बन जाए. The funding for the project will be entirely borne. Will be entirely borne. Borne यानी ई वाला होगा क्या? Borne on ठीक है, borne ठीक है. On the center. The funding for the project will be entirely borne by the center. will भी लगा है तो आगे जो है on preposition नहीं आएगा, by ही आएगा ना, ऐसे के हिसाब से. क्यों कट हो गए क्या सब लोग? नहीं सर, समझ नहीं नहीं सर जी हैं. बाई कौन से प्रॉब्लम आ समझ जाएगी नहीं है. किसमें? तो ये है देखो, बिल भी है तो आगे पैसिव फॉर्म जब जा रहा है तो आगे जो प्रीपोजिशन है तो ऑन कैसे लगाएंगे? ऑब्जेक्ट जो है तो बाई से ही तो देंगे. क्यों? Yes, yes. समझ पाए नहीं समझ पाए? Yes sir, yes sir. Our 21st century society expects all relevant information to simply be handed to us. क्यों? Handed. हैंडेड होगा कि हैंडिंग? Handed. हैंडेड होना चाहिए ना, जी. क्योंकि टू बी आया है, पैसिव दे रहा है, पैसिव फॉर्म है स्ट्रक्चर, तो आगे थर्ड फॉर्म ही तो आनी चाहिए, एनजी फॉर्म ना. समझ रहे हैं? Yes sir.
सी पार्ट में दिक्कत है। द सर्वेंट वाज बीटेन थ्रू हिज मास्टर बाय हिज मास्टर by his master with a stick. विथ स्टिक, बाय हिज मास्टर विथ स्टिक। बाय यहाँ लगेगा, विथ सही लगा हुआ है, इसमें जाएगा सी पार्ट में। मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज Loved. loved by most people। लव्ड loved आ जाएगा, which loved by most people। किसमें आ गई प्रॉब्लम? टी पार्ट में। द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन आवर सब्सिडीज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इज आल्सो seen as a reason to get more education। का क्या होगा इसमें भाई? ऑफर्ड होगा, सब्सिडी ऑफर नहीं, सब्सिडी ऑफर्ड। रिडक्शन ऑफ द कास्ट एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज। Yes sir, offered होगा, subsidy offered by the offered government। by the government जी। Yes, sir। ऑफर्ड, जो ये सब्सिडी हमें ऑफर्ड, गवर्नमेंट द्वारा ऑफर की गई। ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। किस पार्ट में आ गई दिक्कत? बी पार्ट। द ओल्ड वोमेन इन आवर लोकेलिटी इज नोइंग फॉर हर हॉट टेम्पर। is none नो, नोन होगा ना, जी। बी फॉर्म के और पर कंटिन्यूअस नहीं, पैसे होगा for नोन। her for temper। नोन। I was reading the newspaper when I heard the sound of bullets being fired। बुलेट्स बीन फायर्ड, सही है। देखिए कंजक्शन से जुड़े हुए हैं और दोनों साइमल्टेनियसली देना पड़ेगा, पहला कंटिन्यूअस का तो दूसरा भी कंटिन्यूअस का ही होगा ना। बुलेट बीन फायरिंग नहीं, कंटिन्यूअस का करेंगे अगर तो बीइंग फायर्ड हो जाएगा, पैसिव का बीइंग फायर्ड Being पैसिव fired। जाएगा। पैसिव कंटिन्यूअस Being- पैसिव जाएगा, तो being बीइंग कर fired। देंगे, इसको सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस यहाँ पर हमको पैसिव का देना पड़ेगा। जी समझ गए? जी। चलिए, तो ये हो गए भाई 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आप लोगों के सहयोग से। देखिए यहाँ पर हैं बहुत सारे लोग जुड़े अपने इस क्लासरूम में, लेकिन हर एक क्लास में एक नए नए साथी देखने को मिलते हैं। ये अच्छी बात मेरे लिए भी है, लेकिन एक चीज ये ध्यान दीजिए, सिलेक्शन आपको लेना है। आपको ये देखना है कि आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो लगातार जुड़े रहना है, नहीं मिल रहा है बेनिफिट तो भी अपने हिसाब से काम करना है। हम बार बार क्यों फोकस करते हैं, वही पैसा तो लेते नहीं, फिर बार बार जुड़ने के लिए क्यों कहते हैं? यूट्यूब वाला भी नहीं है कि जहाँ से लाइक सब्सक्राइबर मिलेंगे। हम इसलिए कहा करते हैं कि देखिए दो उद्देश्य है हमारे, एक तो खुद तैयारी करना और दूसरे ये भी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच बना करके उनके तैयारी में एक अपना थोड़ा सा भी सहयोग दे दें, ताकि जब वो सेलेक्ट हो जाए तो कम से कम मेरा नाम तो याद रखें। मेरे लिए ये रिवार्ड जो है, इस रिवार्ड के लिए मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, कुछ चीजें जहाँ पेड है तो वहाँ पर भी पेड है, उससे कोई मतलब नहीं आपको, लेकिन जहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट है तो वहाँ पर लगातार है कि ड्यूटी समझ करके इसको जुड़िए। ये समझ करके जुड़िए कि आप 10,000 रुपए पे करे हो किसी कोचिंग में, अभी आप 1,000 रुपए किसी कोचिंग में पे कर दे तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन यहाँ लोग इसमें नहीं जुड़ पाते। क्या पैसा तो हमने दिया नहीं, लेकिन साहब जितने जो है मेहनत आप यहाँ पे कर लोगे वो आपको एडवांस देकर सिलेक्शन दिला देगी। पैसे से क्या मतलब इस चीज का, है ना? ठीक है, तो सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल। आज पेड का कोई सेशन नहीं है, कल से जो है टेस्ट मिलेगा न्यू क्लासरूम पे।
Thank you to all of you. Have a good day. Thank you so much, sir. Thank you. Welcome.